born at the age of 9. Yes. जो नेवर गिविंग एटीट्यूड था वो आई थिंक बचपन से ही था, टू जस्ट फाइट एंड गिव कॉम्पिटिशन टू एनीवन. I'm a firm believer of manifestation. Yes. To begin with, Yes. I feel the way you said and the way I read about you, Yes. your mom actually visualized and manifested you as world's number one even before that happened. Do you agree to this? कि मुझे अच्छा नहीं खेलना है, मुझे जीतना है. What would be that dream that if somebody has to see, I want to be best in my school, I want to be best in my city. Right. At max, I want to be a state champion. Mm-hmm. Or I should be good at India level. Yeah. I want to be a national champion. Nobody would straight away thinking that I want to be world's number one. Yes. In a sport that is not known for, you don't have a role model. That's a journey no other Indian has taken. During that time, how big was your actual dream? आपने कितना बड़ा सोचा था? आपने सोचा था कि मैं वर्ल्ड नंबर वन बनूंगी, या आपने सोचा था कि मैं कुछ ठीक ठाक कर लूंगी, नेशनल लेवल तक कर जाऊंगी? What was that dream? The target was set that she is thinking कि मुझे वो बनना है. मेरे कोच ने अपने फोन पे मेरा नाम वर्ल्ड चैंपियन लगा दिया है. Wow. How do you deal with setbacks, and how do you still make sure that you continue with your journey with same persistence, like waking up every single morning, getting into the same mindset of making sure that you are designed to win? Yes. How does that happen? You have actually given almost 20 years of your life, 20 plus years of your life, with those numerous sacrifices, those setbacks. You played those battles internally every single morning, but you did not give up, and that's why you are who you are. So that's very inspiring. जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाठ है. मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी भी अगर अगला जन्म भी हुआ या नहीं हो, जो भी है, तो एक स्पोर्ट्स पर्सन ही बनूं, बिकॉज स्पोर्ट्स आई थिंक इज द बेस्ट. इट टीचेस यू अ लॉट. I think one thing you can never retire from, and you will never retire from, is being the ambassador of the game. People, for not just this generation, जी. but hundreds of years, Right. your name is written on the wall. It's in the history of India. If not badminton, then what? डॉक्टर. Ladies and gentlemen, welcome to yet another episode of the Sunny Shah Show. What do I tell to introduce today's guest on our show? She is a woman powerhouse who's made India proud on numerous occasions. From Arjuna Award to Khel Ratna to Padma Bhushan. She made India proud by getting us the first Olympic medal in badminton. And she's the first Indian woman to be world's number one in badminton. From our Hyderabad studios, let's welcome Saina Nehwal ji. Saina ji, thank you so much for joining me on the show. थैंक यू सर. It is my honor. I come from your generation, but I can only seek admiration and inspiration from your journey. थैंक यू सो मच. And before we start and we get into knowing you better for our audience, on behalf of India, I want to thank you for doing everything that you've done Thank and making our nation feel so proud. थैंक यू. And Thank thank you. you for everything that you've done throughout this journey of yours. जी. Saina, starting from the beginning, जी. when the routing happened, जी. you hail from Hisar, Haryana. Yeah. And then, like everybody knows, Hyderabad, for various reasons, is the Karm Bhumi. Yes. So your parents moved here, and that's how you came to Hyderabad. But can you guide us a little bit more about how this journey got instilled? That you wanted to be a sports person, you wanted to play badminton, and whether this relocation actually helped or hurted, and was there a hiccup? Can you tell us more about how this journey started? I think it's been very long, like almost 24-25 years in this in the sport, and I was a very sporty person in Hisar. I used to play, love playing all kind of sports. But parents बैडमिंटन खेलते थे क्लब में, सो यू नो आई टू सी देम प्ले, लेकिन कभी मैंने इंटरेस्ट लिया नहीं क्योंकि वो दोनों खेलते थे. तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई विल गो एंड प्ले सम अदर स्पोर्ट. एंड आई टू हार्डली सिट एट होम. आई टू जस्ट बी आउट आफ्टर द स्कूल एंड प्ले ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स. और रात में भी मुझे आवाज़ लगा के बुलाते थे, आजा खाने के लिए आजा. बट यू नो इट वाज फन टू जस्ट बी अ स्पोर्टी पर्सन. आई नेवर थॉट कि एक दिन मैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बन जाऊंगी. पापा इज़ अ साइंटिस्ट, मम्मी हाउसवाइफ हैं.
तो वन डे पापा गेट्स प्रमोटेड एंड इज लाइक चलो हैदराबाद चलते हैं, एंड आई एम लाइक पापा सीधा साउथ में, मतलब लैंग्वेज चेंज हो जाएगा एंड देन ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स एंड सब यहीं पे रह जाएंगे, एंड मम्मी ऑल्सो हैड लॉट ऑफ डाउट्स कि कैसे एडजस्ट करेंगे, बट पापा वाज लाइक नहीं, जॉब के लिए आई हैव टू मूव देयर, एंड देन बस नेक्स्ट 2-3 days में वी मूव टू Hyderabad. And now the tough part is that the language issues and of course sports के लिए जैसे कोई friends भी इतने जल्दी नहीं बनते हैं, it takes time. So I requested Papa that maybe I want to play some kind of sport after school. So he was like karate चल रहे हैं next to our classes, next to our house. So please मैं जाके तुझे वहाँ पे join करवाता हूँ, तू अच्छे से कर रही है वो क्लासेस करके आ। लाइक कैसे स्पोर्ट में आ गई मैं, इट इज रियली टफ एंड बट आई रियली एंजॉयड इट फॉर एन ईयर। आई यूज्ड टू डू दैट आफ्टर माय स्कूलिंग एंड after my school, and I used to go there and do a lot of fighting with the boys and sparring होता था, फिर different different मतलब चीज़ें सिखाते हैं कराटे में जो difficult होती हैं, but I used to really enjoy it। एक दो लड़कियां थी, काफ़ी लड़के थे, and after that you know I got the brown belt in that, and just एक belt रह गया था to get the black belt, but the stunts were a little difficult, so I couldn't continue as much। मुझे थोड़ा पेट में दर्द होने लगा, एंड आई रिक्वेस्टेड पापा कि कोई ऐसा स्पोर्ट हो जहाँ पे इतनी मार ना खाने को पड़े, आई वांट टू प्ले सम अदर sport, and that's when I think one of my father's friend was like, why don't we put Saina in badminton, because badminton is very big in Hyderabad, and Gopi sir were big name here, and 2-3 other players were very big, and but I didn't know badminton is such a big sport here in Hyderabad already। So LB स्टेडियम में ये लोग खेलते थे, एंड SM Arif sir was very very big coach then, Right. along with Govardhan Reddy sir and Nani Prasad sir। तो ये तीनों का एक ग्रुप होता था और वहाँ पे समर कैंप होता था। So what happened was we got late by a day or two, and he was like इस साल तो आपका नहीं हो पाएगा selection, please come next year। And then Papa was like, please just see if Saina can play any good तो आप ले लीजिए, नहीं तो हम next year आ जाएंगे। So the first shot which I played was a smash, and I was also surprised, एक beginner का जो मेरे साथ में भी खेल रहे थे कोर्ट पे, they were all hitting tosses and drops, and मेरा जो शॉट था naturally एक powerful smash था, and the coach was also surprised कैसे कैसे हो सकता है, it's not so easy, and that happened only by seeing my parents play। मैं वहाँ पे बैठ के ऑमलेट या थोड़ा सा कुछ ऐसे पकौड़े खा लेती थी बचपन में, लेकिन मैंने कभी खेला नहीं बैडमिंटन। वो उसी टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम रैकेट उठाया होगा, एंड देन जो स्मैश मारा, कोच वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड ही वाज लाइक, प्लीज गेट साइना फ्रॉम टुमारो, आई थिंक शी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द गुड प्लेयर्स हियर, and that's how my journey started in badminton, and in the summer camp I was so excited to train with all of them। Different different training hoti thi, I used to love it। One day used to be agility, one day Right. used to be weight training, one day used to be shadow training, one day used to be something big on मतलब long on court। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनिंग होते थे, तो दिल भी लगता था, एंड आई यूज्ड टू, छुट्टियां भी थी तो मॉर्निंग 6 से ऑलमोस्ट 10-11 तक खेलते रहना, एंड देन क्योंकि समर कैंप था तो एक सेशन होता था, तो मम्मी यूज टू से कि शाम में भी हम खेलने चलते हैं। Sure. एक क्लब में लेके जाती थी मुझे, बट आई डिडंट नो कि ये हो क्यों रहा है, व्हाई शी गेटिंग सो मच इन्वॉल्व इन दिस, बट विद इन 6-7 days या 10 days मुझे बोलती है, आई वांट टू सी यू एज एन ओलंपियन। Wow. And I was surprised, is she joking, or because at that point of time जितना मुझे knowledge आया after getting into badminton is that Chinese, Japanese, Koreans, Malaysians, Indonesians, they are so powerful, they are so big in the sport, सब top 10 में वही हैं। What is she even telling me? But she already dreamt, वो उसी टाइम पे एक हाउसवाइफ ने सोच लिया था कि मैं अपने बच्चे को एक ओलंपियन बनाऊंगी। And in that 10-15 days only, one of the coach called Govardhan Reddy sir, he actually he was telling my mom कि ये तो world champion भी बन सकती है। These people had such big dreams at that point of time, and 9 साल के बच्चे को she is only thinking about पापा साइंटिस्ट हैं तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगी या कुछ उसी फील्ड में पढ़ाई में करूंगी।
and they are dreaming something else for me. But the day used to be so difficult, you know. सुबह 4 बजे उठते थे हम, क्योंकि 25 किलोमीटर्स दूर था स्टेडियम, तो 2-3 बसेस चेंज करनी पड़ती थी, एंड 4 से 6 o'clock पहुंचते थे, 6 to 11 ट्रेनिंग करते थे, एंड हैट्स ऑफ टू पापा कि वो मेरे लिए 2 घंटे ऑफिस लेट भी जाते थे, एंड दैट आई ऑब्वियसली गॉट टू नो व्हेन आई बिकेम लिटिल ओल्डर, यू ना, 15-16 में मुझे मालूम पड़ा कि पापा एक्चुअली ये सब पापा ने क्यों किया, यू नो, व्हाई वाज ही लाइक मेरे लिए 2 घंटे एक्चुअली लेट जाते थे। आई डोंट नो ऑफिस में फिर क्या हाल होता था उनका, बट Right. ही वाज लाइक नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए 2 घंटा और वेट करके आता हूँ, और शाम में मम्मी लेके आती थी मुझे फ्रॉम स्कूल, तो अगेन वी यूज्ड टू गो टू अस एंड देन कम बैक बाय 9-9:30 इन द नाइट। कोई फिजियोज और ट्रेनर्स नहीं थे, तो शी यूज टू मेक श्योर कि पूरे रात बैठ के मेरे लेग को मसाज करना, मुझे अच्छा खाना खिलाना। शी वाज लाइक साइना को इतना स्ट्रांग बनाना है कि इवन इफ शी इज प्लेइंग अंडर 10, उसको अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 भी जीतने का कैपेबिलिटी रहना चाहिए। Wow. तो दीज आर द थिंग्स दे वर एक्चुअली थिंकिंग। कभी कभी मैं सुन लेती थी उनकी बात, बट आई यूज्ड टू रियली लव द ट्रेनिंग पार्ट। I used to love spending time on court. And slowly, at the end of the summer camp, I was the district champion as well, under 10. मुझे सेलेक्ट किया गया रेगुलर्स के लिए, एंड विद इन 2-3 months after the summer camp I won the national ranking tournaments of under 10. So that is how the journey started, you know, the belief of my mom especially, एंड उनके सपना जो इमीडिएटली उन्होंने सोच लिया कि साइना एक ओलंपिक चैंपियन बन सकती है या एक वर्ल्ड लेवल प्लेयर बन सकती है, ऑल दैट थिंग हैपेंड इन 99 समर कैंप ओनली। तो जो उन्होंने सपना देखा, देयर वाज नो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, एंड शी विल डू इट। ये सब वो आई थिंक वो लेके चले थे और मेरे माइंड में भी बिठाया। आई थिंक कहीं ना कहीं लकी थी कि मेरा मेरा बॉडी क्वाइट केपेबल था टू Right. टेक दैट लोड, क्योंकि जो फिजियो ट्रेनर जो मुझे मिले वो मुझे फर्स्ट मिले एट द एज ऑफ 19, जब मैं ऑलरेडी फिलीपींस ओपन जीत चुकी Yeah. थी, मैं ओलंपिक्स खेल चुकी थी, वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बन चुकी थी। सो एंड इन दैट फ्यू इयर्स माय मॉम, माय कोच, दे यूज्ड टू बी माय व्हाट यू से फिजियोज एंड ट्रेनर्स एंड डाइटिशियन। मतलब कुछ ऐसा प्रोफेशनल तरीके से नहीं था, बट व्हाट आई कुड डू without having a role model. I think it was great that these people had some confidence in me, and my attitude of never giving up and just fighting on the court, and जितना भी हो रैलीज अच्छा करना है, अच्छा opponent को थकाना है, was that kind of attitude really really helped me to achieve those few tournaments, I guess. Yeah, initially. That is brilliant. Goosebump moments and a lot of things. A star was born at the age of 9 Yes. in Yes. 1999. 99. A couple of things that I extrapolated from what you just said. Yes. Maybe that karate sting Yes. toned up your body, क्योंकि वो पहले दिन वो स्मैश नहीं आता है, नहीं right? आता। Maybe that physical fitness that you gained all the way Yes. to brown belt Yes. Yes. could be one way of Karate really helped that way, made me mentally strong because we used to have sparring with the boys as well. तो काफी डिफरेंट फाइटिंग स्टंट्स भी रहते थे, लड़कों के साथ भी लड़कियों के साथ भी, काफी लाल लाल हो जाता था, बट देन आई थिंक आई बिकेम वेरी स्ट्रांग विद दैट karate classes initially, and I will recommend that to lot of young kids, you know, जो मैंने भी फिर भी बहुत लेट शुरू किया एट द एज ऑफ 9। चाइना में तो 3 साल के बच्चे शुरू कर देते हैं right. बैडमिंटन, यू नो। तो 3-4 साल के बच्चों को आई थिंक स्विमिंग, स्केटिंग, फिर जिमनास्टिक्स या कराटे, दीज आर द थिंग्स आई थिंक दे शुड स्टार्ट अर्ली, तो ताकि काफ़ी हद तक वो मैच्योर हो जाएंगे अगर उन्हें कोई भी स्पोर्ट प्रोफेशनली लेना है या नॉर्मल लाइफ में भी। इट विल मेक यू वेरी स्ट्रांग, यू नो। कुछ फोकस करने का लेवल बहुत बढ़ जाता है, और डिसिप्लिन बहुत आता है। डिसिप्लिन बहुत आता है, वो टाइम पे क्लासेस हैं तो आप वही टाइम पे वहाँ पे Yeah. प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि दी स्पोर्ट्स में जो कोचेज होते हैं ना वो काफ़ी हार्ड होते हैं आप पे। दे विल नॉट थिंक अबाउट के हाँ थोड़ा लेट हो गया है, दे विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, आपको 10 राउंड भगाएंगे या आपको इमीडिएटली ऐसी पनिशमेंट दे देंगे कि यू विल नॉट बी लेट अगेन। सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक आप अगर अर्ली सीख लेंगे तो देन आई थिंक फुल लाइफ आपको दिमाग में रहता है कि मुझे आई हैव टू बी ऑन टाइम, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, कहीं भी आप लेट नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वो चलते रहता है, एंड इट मेक्स यू सो स्ट्रांग एंड आई थिंक फिट टू प्ले एनी काइंड ऑफ रोल। बट आई थिंक मेरे लिए वो मेरे बैडमिंटन में बहुत हेल्प हुआ। Right. बट जो नेवर गिविंग एटीट्यूड था वो आई थिंक बचपन से ही था, टू जस्ट फाइट एंड गिव कंपटीशन टू एनीवन।
अगर लड़कियां मुझसे पीछे रह गई हैं तो अब थोड़ा लड़कों को भी फाइट देंगे, क्योंकि लड़के ऑब्वियसली अपने आप से compete करते हैं अमंग बॉयज। तो आप अगर उनके पास भी आ गए तो दैट मीन्स आप लड़कियों में बहुत अच्छा खेल लेंगे। तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द बॉयज आउट देयर ऑल्सो, जिन्होंने इतनी मेरी मदद करी और मेरा गेम बहुत इम्प्रूव करवाया। Right. एंड या दे से कि समटाइम्स हमने अपना सेशन भी मिस किया साइना को खिलाने के लिए, तो अच्छा लगता है, वो सब चीज़ें याद आती हैं जो स्टार्टिंग में हुई। तो या यही ऐसे जो चीज़ें होती हैं आपको बहुत स्ट्रांग बनाती हैं फॉर श्योर। You mentioned your mother's name multiple यस, times, मल्टीपल right? टाइम्स, यस। I feel I'm a firm believer of manifestation यस, to begin with. यस, I feel the way you said and the way I've read about you, यस, your mom actually visualized and manifested you as world's number one even before that happened. Do you यस। agree to this? आई डेफिनेटली एग्री टू दैट। मैनिफेस्टेशन उनका था, बिलीफ उनका था, मुझ में आया बाय द टाइम आई वाज 12 और 13, लेकिन रोड एक ही था दोनों का। इवन इफ आई यूज्ड टू से व्हाई आर यू हिटिंग मी, व्हाई आर यू मेकिंग मी डू दिस स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, व्हाई डू आई हैव टू गेट अप ऑन संडेज, माय बॉडी इज हर्टिंग, इवन इफ आई यूज्ड टू टेल दिस थिंग्स, बट ये इनिशियली रहा फॉर लाइक 1 ईयर। मेनी पीपल विल थिंक एंड पेरेंट्स विल थिंक इतना बच्चे पे हार्श क्यों हुए, इतना डिफिकल्ट टाइम से क्यों उसको निकाला। लेकिन व्हेन आई स्टूड ऑन द पोडियम, व्हेन सो मेनी पीपल आर लुकिंग एट मी, आई हैव दे आर क्राइंग विद माय, दे आर लाफिंग विद दैट, Yeah. मतलब जो मेडल आया उसके मेरे साथ इमोशंस दिखा रहे थे। और इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, आई नो इट्स डिफिकल्ट टू मेक अ स्पोर्ट्स पर्सन, इट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन फिर आर्मी ऑफिसर्स, नेवी वाले और यार एयरफोर्स वाले क्या करते होंगे, किस लेवल के इमोशनलेस पर्सन होते होंगे वो लोग, कि हम स्पोर्ट्स में आने में ही इतना डिफिकल्टी हो जाती है एंड वी फील कि ये इंजरी है, ये दिक्कत है, ये दर्द है, मुझसे नहीं होगा। आजकल के बच्चे, मेरी नीस ही मुझे बोलती है, एक राउंड जब करती है वो नीचे थोड़ा सा रनिंग, बोल देगी मेरे नी में दर्द हो रहा है, ये है वो है। आ, ये सब चीजों को मेरे कोच ने, मेरी मम्मी ने बोला कि कुछ दर्द नहीं हो रहा है, चुपचाप जाके ट्रेनिंग करो, चुपचाप जाके अपना जो सेशन है उसे कंप्लीट करो। और मेरी आदत बहुत कम थी, मैं ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करती थी, मुझे थोड़ा पेन लेने का भी आदत थी। अनलेस इट इज़ रियली बैड पेन, मैं दिखाती नहीं थी कोई फिजियो को कि मुझे दर्द है, बट मुझे ट्रेनिंग करना, मेरी मम्मी ने बोला है मुझे ट्रेनिंग करना है, मेरे कोच ने बोला है मुझे कंप्लीट करना है। एग्जाम्स आ रहे हैं, बुक मेरे हाथ में रहेगी, बट आई विल गो डाउन एंड डू माई रनिंग, और मैं आंसर्स पढ़ते रहूंगी, बट मुझे कंप्लीट करना है। तो आई थिंक इनिशियली 1-2 ईयर्स टफ रहा, बहुत रोना आया कि ये बहुत पुश हो रहा है, संडेज भी उठना पड़ रहा है। बट 2 ईयर्स के बाद जब उन्होंने मुझे थोड़ा कहना कम कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये अच्छा खेल रही है, अच्छा जीत रही है, तब मुझे लगने लगा ये मुझे कम क्यों बोल रहे हैं। दैट इज हाउ इट एक्चुअली, मेरे अंदर उन्होंने इतना वो बिठा दिया कि नाउ आई And जस्ट she took a वांट। back seat and then Yes, she and she knew that she is into it now. She will do it herself. She is very dedicated. She actually wants to get up in the morning, take the bus at 4, and be there at 6. उसको पता है 6:05 गए तो कोच कैसे कहेगा। तो everything was so planned and अच्छी रूटीन से चल रही थी। तो सडनली ये लोग चुप हो गए थे और उनको लग रहा था साइना इज फॉलोइंग गुड रूटीन और अच्छा कर रही है। देन आई वाज लाइक क्यों नहीं बोल रहे हैं, एंड देन बट दे वर ऑलवेज देयर, दे वर देयर व्हेन आई यूज्ड टू प्ले गुड मैचेस एंड लूज, तो दे वर देयर कि तू जीत सकती थी। एंड कोर्ट पे भी आके इन फ्रंट ऑफ सो मेनी प्लेयर्स, शी डिडंट केयर, माय कोच डिडंट केयर, वो मुझे वहाँ पे भी चिल्ला देते थे कि यू प्लेड वेल बट यू कुड हैव वन द मैच। एक दो बार तो हाथ भी उठाया मुझ पे, लेकिन आई टू सी माय कलीग्स देयर, दे टू लाफ एट मी कि इसकी मम्मी तो मार रही है, इसका कोच तो उसको गाली दे रहे हैं। देन आई टू बी लाइक एक दिन तुम लोगों को मैं करके दिखाऊंगी ना। ऑब्वियसली आई डिडंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, so all that came into your energy. या एनर्जी में, एंड आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे। मैंने कभी नेगेटिव नहीं लिया, या मैं कभी उसके लिए स्ट्रेस्ड आउट नहीं हुई कि मैं क्या कर रही हूँ या मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है या मेरी मम्मी मुझे क्यों डांट मार रही है। आई वॉज ऑलवेज लाइक नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, मुझे खेलना पसंद है। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट पसंद, मुझे खेलना पसंद है, आई शुड लाइक इट। तो ये सब चीज़ें मुझे नॉर्मल लगने लगी, एंड आई वॉज लाइक नहीं, मुझे इनको करके दिखाना है। एंड दैट इज वेन एक और चीज़ दिल में बैठ गई कि मुझे अच्छा नहीं खेलना है, मुझे जीतना है। सो दैट इज हाउ इट इज, एंड देन नेक्स्ट ईयर से वो जीतने का फीलिंग, फिर मैं जीतने लग गई काफी हद तक। फिर मैं बाय द टाइम आई वाज 13, आई ऑलरेडी एम इन द इंटरनेशनल सीनियर टीम नाउ। Right. तो आजकल के बच्चे 13-14 साल में मुझे बोलते हैं दीदी कैसे हम नेशनल चैंपियनशिप जीते।
समटाइम्स आई टेंड टू थिंक के अगर मैं 13 साल की हूँ तो मैंने तो इंटरनेशनल लेवल पे एंट्री कर ली है, अब सीनियर लेवल पे। तो इन बच्चों को मैं क्या सिखा सकती हूँ कि वो नेशनल्स भी जीते, अभी स्टेट चैंपियनशिप भी जीतनी है। तो दैट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि चैंपियन क्वालिटी ना काफी कम प्लेयर में आती है। 10-15 तो ट्रेनिंग वही सेम करेंगे बट जीतेंगे दो ही उसमें से। वो होता ही है, वो मैंने इतने सालों से देखा है। लेकिन जो बच्चे 15 मेहनत कर रहे हैं, जो इक्वल लेवल पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, सबको एक लेवल का रिजल्ट नहीं आता है। Right. तो थोड़ा दुख हो जाता है, कहीं बीच में छोड़ देते हैं, फिर उनको पढ़ाई का प्रेशर आ जाता है। फिर वो टैलेंटेड बच्चे भी रहते हैं, मुझसे काफी टैलेंटेड बच्चे थे जो सब इंजीनियरिंग में चले गए या डॉक्टर फील्ड में चले गए। लेकिन मैंने हमेशा मेहनत करी, मुझे लगा मुझे अगर टैलेंटेड पर्सन को हराना है तो वो अगर 100 बार वो प्रैक्टिस कर रहा है तो मुझे वो 1000 बार या 1 लाख बार करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी वो स्ट्रोक सही से आना चाहिए। तो मैंने बस उस चीज पे ध्यान दिया। एंड लकीली मुझे जो स्पॉन्सरशिप्स थी वो काफी अर्ली एज में आने लगी। बाय द टाइम आई वाज 13 मुझे भारत पेट्रोलियम ने स्पॉन्सरशिप दे दिया। एंड योनिक्स बहुत बड़े स्पॉन्सर जो मेरे साथ अभी तक हैं, दे आर लाइक माई फैमिली। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो जितने इंटरनेशनल इवेंट्स थे, अगर समटाइम्स गवर्नमेंट यू शुड नॉट हेल्प फॉर द इवेंट्स, तो वो उन लोगों ने पैसा दिया मुझे, Oh, very nice. शूज रैकेट्स खरीदने के लिए पैसा दिया। 1-2 साल में और मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने अपना फर्स्ट सीनियर कॉमनवेल्थ गेम्स खेला, फिलीपींस ओपन जीता। तो मित्तल्स चैंपियंस ट्रस्ट फाउंडेशन ने मुझे हेल्प किया, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट जो ओजीक्यू हैं उन्होंने मुझे हेल्प किया। तो दीज आर दी फाउंडेशंस जो मुझे सही टाइम पे मिलती रही, सही टाइम पे वो अमाउंट मिलता रहा जहाँ मैं टूर्नामेंट्स जाके खेल सकूं या अपने जो जरूरत की चीजें हैं उनको खरीद सकूं। और काफी बच्चों को वो नहीं मिल पाया, तो उनको लगा कि इस गेम में कुछ ज्यादा फ्यूचर नहीं है, एंड अगर अचीव करना है तो यू विल हैव टू बी द बेस्ट। और या प्लेयर्स लाइक मी, सिंधु, श्रीकांत, प्रणॉय, साई प्रणीत, कश्यप, वी ऑल पुश्ड हार्डर एंड हमें वो मिला भी। बट काफी बच्चे जो हमारे साथ थे उनको छोड़ना पड़ा बिकॉज उतना हेल्प उनको नहीं मिल पाया। जी। I mean, we look back at your journey. या It's more of a destiny that was written on the wall. आई So थिंक the way your parents in the late 90s यस and early 2000s gave that sacrifice. यस You mentioned about your dad going to office late. लेट So one या can imagine what he would have लोन्स felt. भी लिए उन्होंने, काफी Imagine. लोन्स भी लिए, क्योंकि उनको पता था साइना ट्रेन में जाएगी तो 2-3 दिन उसका बॉडी स्टिफ हो जाएगा, उसको उसकी ट्रेनिंग मिस होएगी। तो उन्होंने फ्लाइट टिकट्स लेते थे मेरे लिए, अपने फ्रेंड से पैसे लेते थे। और आज मैं बैठ के उनसे पूछती हूँ, पापा आपको क्यों, आपने इतना सेक्रीफाइस किया, और ऐसे स्पोर्ट में जो इतना पॉपुलर भी नहीं था इंडिया में, और आपने एक ऐसे बच्चे को सपोर्ट किया जो बस स्टार्ट, बैडमिंटन को ग्रो किया मैंने थोड़ा बहुत, तो आपने बस बिलीव रखा कि हाँ ये करेगी कुछ, तो आपने इतना कुछ कर दिया मेरे लिए। तो यानी लाइक पेरेंट्स का प्यार है, बच्चे समझेगी, तू भी समझेगी लेटर ऑन। लेकिन आई मीन ही बीइंग अ साइंटिस्ट, लेटर ऑन ही सेज कि मुझे हॉकी से बहुत प्यार था, और मेरे पेरेंट्स मुझे हॉकी नहीं खिला पाए। तो मैं चाहता था कि मेरा बच्चा जो है उसको मैं सब कुछ दे सकूं ताकि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन बने। और मम्मी तो स्पोर्ट्स फैन थी ही, शी यूज्ड टू लव वाचिंग टेनिस, इतना टेनिस पसंद था उनको कि मेरा नाम भी स्टेफी साइना रख दिया था। तो हरियाणा में, हिसार में सब लोग मुझे स्टेफी ही बुलाते थे। वो तो हैदराबाद में आके उन्होंने मेरा नाम साइना नेहवाल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देवर लाइक स्टेफी है कि साइना है, तो देन देवर लाइक नहीं साइना नेहवाल करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली साइना नेहवाल बन के मैं उभरी और अच्छा खेला। लेकिन ऑल थैंक्स टू पापा फॉर जस्ट सपोर्टिंग मम्मी। मम्मी वाज आउटराइट श्योर कि इसको स्पोर्ट्स पर्सन बनाना है, कुछ सेकंड थॉट नहीं था। तो जब भी थोड़ी बहुत आई थिंक लड़ाई होती थी या जो भी होता था, मम्मी यूज्ड टू बी द विनर, और पापा कम बोलेंगे, और आई थिंक पापा को कुछ और ऑप्शन भी नहीं है मम्मियों के सामने। तो आई थिंक ही वाज वेरी सपोर्टिव दैट वे। उन्होंने फर्स्ट 3-4 इयर्स तो काफी स्ट्रगल देखा, बट ही वाज हैप्पी कि साइना इज गेटिंग सम अमाउंट फ्रॉम डिफरेंट स्पॉन्सर्स, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। जी। आपकी वजह से और आपको देखकर जी। आज बहुत सारे young sportsmen inspire होके जी। they look at you as a role model and they want to go through your journey जी। and they want to do better to make India proud. यस। When you started, उस वक्त, correct me if I'm wrong, there were very few role models यस। in your sports, especially when it comes to women in badminton. यस। So you were almost like a lone warrior
trying to create a blue ocean Right. that अगर ये हुआ, this is going to be historic for India, historic Yes. for you as a person, obviously. ये जब जर्नी आपने शुरू की, Right. and I'm trying to put myself in a 10-12-year-old young girl Yeah. in Hyderabad thinking about a dream Yeah. that she wants to pursue. And when you look at it that way, right? A teenager today, what would be that dream that if somebody has to see? I want to be best in my school. I want to be best in my city. Right. At max, I want to be a state champion. Mm-hmm. Or I should be good at India level. Yeah. I want to be a national champion. Yeah. Nobody would straight away thinking that I want to be world's number one. Yes. In a sport that is not known for, you don't have a role model. That's a journey no other Indian has taken. Of course. During that time, how big was your actual dream? आपने कितना बड़ा सोचा था? आपने सोचा था कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 बनूंगी, या आपने सोचा था कि मैं कुछ ठीक ठाक कर लूंगी, नेशनल लेवल तक कर जाऊंगी? What was that dream all about? कुछ नहीं था. I didn't have any knowledge about the sport. मुझे पता ही नहीं था कि इंडोनेशिया ओपन क्या होता है, या ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप्स क्या होती है, या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स क्या होती है. मैंने एंटर किया जस्ट फॉर फन. आई वांटेड टू प्ले बैडमिंटन जस्ट फॉर फन. एंड मेरे स्कूल से पहले कुछ टाइम मुझे मेहनत करने को मिल जाएगा, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ खेल लूंगी मैं. इतना ही मेरी नॉलेज थी. दैट्स व्हाट आई न्यू अबाउट क्या करना है. 9 साल के बच्चे को और पता ही क्या रहेगा. आई थिंक यू डोंट नो कि मे बी थोड़ा बहुत टेनिस फॉलो कर लेती थी मैं, बिकॉज मम्मी यूज टू वॉच. बट बैडमिंटन में आई टू जस्ट सी इन द पेपर प्रकाश सर ने जीता था, फिर गोपी सर जीत रहे थे, फिर धनराज पिल्लई सर का नाम बहुत आता था, फिर ऑफकोर्स क्रिकेट में सचिन सर, ये सब काफ़ी उनका नाम आता था. तो मुझे ये नहीं पता था कि आई विल बी अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन. मुझे ये नॉलेज थी ही नहीं. 9-10 ईयर्स में मम्मी की एक पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं उसको ही फॉलो कर रही थी. शी वॉज थिंकिंग ओलंपिक्स में कुछ करेगी, तो मुझे भी लगने लगा ओलंपिक्स में कुछ करूंगी. राइट. मुझे क्या पता था ओलंपिक्स 1 in 4 years आता है, या एक ही टेक रहेगा, या ऐसा नर्वसनेस रहेगा, ऐसा टेंशन रहेंगी. आई मीन यू विल हैव सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल दैट यू विल बिकम वर्ल्ड नंबर 2, एंड देन यू आर प्लेइंग द ओलंपिक्स, या आप 18 साल में पहले ओलंपिक्स खेलेंगे, एंड यू आर प्लेइंग सो वेल दैट यू आर ऑलरेडी क्लोज टू गेटिंग अ मेडल. करेक्ट. तो सब चीजें इतनी जल्दी होने लगी कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है. एवरीथिंग वाज फॉलिंग इन प्लेस एंड सच ब्यूटीफुली. जब स्टेट लेवल की बात हुई, तो मुझे मम्मी बोल रही थी ओलंपिक्स पहुंचना है तो इसको जीतना है, इसको भी जीतना है. तो टारगेट कभी मैंने ये लगाया नहीं कि मुझे स्टेट चैंपियन बनना है या मुझे नेशनल चैंपियन बनना है. द टारगेट वाज सेट दैट शी इज थिंकिंग कि मुझे वो बनना है. मेरे कोच ने अपने फोन पे मेरा नाम वर्ल्ड चैंपियन लगा दिया है. वाओ. तो मैं देन आई टू फॉलो दी इंटरनेशनल मैचेस. अब मैंने इंटरनेशनल मैचेस फॉलो करना शुरू कर दिया, बिकॉज आई एम इन द स्पोर्ट नाउ. एंड दैट इज व्हेन 2001 में गोपी सर वन दी ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप्स. उन्होंने ऑल इंग्लैंड जीता, एंड दैट इज व्हेन आई एम लाइक, ओ माय गॉड, इट्स अ प्रेस्टिजियस वन, एंड ही इज वन सच अ बिग इवेंट, दैट मींस इट्स पॉसिबल फॉर अस टू डू इट. वो एक थॉट आया मुझे. बट स्टिल ये मेन साइड में है. वुमेन साइड में अभी तक कोई थी नहीं जो जिन्होंने इतना कुछ बड़े लेवल पे अचीव किया. लेकिन अपर्णा दीदी थी जिन्होंने टॉप 20 में वर्ल्ड में वो थी. एंड नाउ माई टारगेट वॉज कि मुझे मम्मी ने बोला है कि ओलंपिक्स में अच्छा करना है. एंड देयर वाज नो रैंकिंग थिंग आई वाज थिंकिंग अबाउट, नथिंग एट ऑल. इट वाज ऑल अबाउट नाउ आई हैव टू विन नेशनल्स. एंड नेशनल्स भी मुझे अंडर 13 का जीतना है, अंडर 16 का जीतना है, 19 का जीतना है, और सीनियर्स का जीतना है. And that too singles and doubles. Lot of clarity. Lot of clarity. That was my dream for that point of time कि मुझे नेशनल्स में ये सब करना है. एंड बाय देन आई गॉट टू नो कि अगर आप नेशनल्स में अच्छा करेंगे तो आपको जॉब मिल जाती है. सो वो सब नॉलेज आने लगी. एंड देन यस, भारत पेट्रोलियम अप्रोच्ड मी. इनिशियली तो ऑब्वियसली स्पॉन्सरशिप दिया. 18 के बाद आई वाज विद देम. उन्होंने मुझे जॉब दे दिया था. बट आई डिडंट नो कि ये जो 4-5 चैंपियनशिप्स हैं मैं इतनी जल्दी जीत जाऊंगी, या 14 ईयर्स में मैं अपर्णा दीदी को एशियन सैटेलाइट में हरा दूंगी. एंड बाय द टाइम आई एम 15-16, आई एम प्लेइंग द सीनियर कॉमनवेल्थ गेम्स. आई एम प्लेइंग the Philippines Open, beating world number 3 in the quarters and winning it off. And I was ranked 200 then. And within 2 years, I'm playing the Olympics. I won the World Junior Championships. Yeah. I won the World Youth Commonwealth Games. And next 1 year, I win the first Indonesia Open title. And I get to world number 2 ranking within 1 year. So these are the things which actually, if I look back, there was no time where I'm sitting and talking to my parents कि 10th के बाद करना क्या है.
या स्पोर्ट्स में ही मेरा करियर आगे बढ़ेगा, या आई सैट विद देम और आई एम टॉकिंग टू देम लाइक, इज ओलंपिक द ड्रीम और इज द नेशनल चैंपियनशिप द ड्रीम? नो, देयर वाज नो टाइम आई रिमेम्बर वेयर एक्चुअली आई सैट विद देम एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. इट वाज ओनली कोट कोट एंड कोट. मतलब जब 9 10 11 12 साल के होते हो तो आई थिंक योर बॉडी कैन पुश अ लॉट. तो आप, आई वाज ट्रेनिंग फॉर मे बी क्लोज टू 9 to 10 hours एंड थोड़ी सी भी मिस्टेक होती थी तो कोच वाज ऑलवेज देयर. मतलब वो रैकेट के साथ रेडी रहते थे कि साइना थोड़ी भी मिस्टेक करेगी तो पीछे से आई एम गोइंग टू, बिकॉज शी इज समवन हु इज केपेबल ऑफ डूइंग गुड. एंड आई डोंट वांट हर टू बी लेजी ऑन कोर्ट एंड थिंक एक पॉइंट भी शी शुड नॉट थिंक कि ये ऐसे ही वेस्ट होना चाहिए. वन वन पॉइंट शी शुड फाइट. इवन इफ शी लूजेस शी विल फाइट फॉर दोज वन वन पॉइंट्स. आई मीन इतना फिर अलर्टनेस आ जाता है ना, देन व्हेन यू आर प्लेइंग ऑन योर ओन एंड व्हेन यू हैव मैचेस गोइंग ऑन, योर कोचेस आर सिटिंग मतलब outside, they will help you just with the points. They're going to tell you in those few points, but your work is to play well there, have that strong mind, and you're alert each and every point now. Even if you think के मुझे सांस चढ़ गया है या मुझे मेरा स्टेमिना थोड़ा आउट है, but you will still play with alertness and you will still give your best. क्या पता उस alertness से ही आपको 2 3 पॉइंट और आ जाए. Makes sense. So these are the things, small things matters in the last few points. Even opponent is going to get tired, even you are going to get tired. ऐसा हो ही नहीं सकता कि opponent थक नहीं रहा है, वो भी इतने रैलीज करके थकेगा. बट जो 2 3 पॉइंट जो चैंपियन मटेरियल जो मैं आपको बोल रही थी, वो यही होता है कि एक अलर्टनेस एक चीज होती है, फोकस एक चीज होती है, जो लास्ट फ्यू पॉइंट्स में मैच निकाल ले, वो एक कामनेस रिक्वायर्ड होती है. तो दीज आर द थिंग्स विच कम्स विद ऑल दिस थिंग्स कि कोई आपको डेली बेसिस पे ये बोल रहा है कि अलर्ट रहना है, काम रहना है. एंड ऑब्वियसली टिल 19 आई डिडंट नो कि मेडिटेशन भी इतना करना चाहिए कि यू हैव टू रिलैक्स योर माइंड. Gopi sir came in 2003 and 4 as a coach. That's when he introduced कि थोड़ा माइंड को भी रिलैक्स करना चाहिए और कुछ भी नहीं खाना चाहिए. आई नो यू आर वेजिटेरियन, सो यू विल हैव टू हैव गुड प्रोटीन एंड गुड फूड बिकॉज यू आर गोइंग टू ट्रैवल अ लॉट नाउ. सो हम वेजिटेरियन फूड ऐसा पैक करके लेके नहीं जा सकते हैं. सो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छा प्रोटीन खाओ, थोड़ा नॉन वेज साइड में आओ बिकॉज यू विल हैव टू रोम अराउंड द वर्ल्ड, तो आपको खाना इजीली मिलने नहीं वाला है. एंड आई ट्राइड लिटिल बिट ऑफ नॉन वेज एंड खाना उनके साथ मैंने ट्राई किया एंड दैट इज व्हेन आई एम लाइक अब ये भी करना पड़ेगा. आई मीन आई विल हैव टू डू दिस टू बिकम द बेस्ट. तो मैंने किया एंड ही वाज लाइक अब क्वालिटी वर्क करना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली 9 10 hours was too much then. So by the time I was 13 14, तो सर ने हमारा प्रोग्राम ऐसा डिजाइन कर दिया कि we were training for 6 7 hours, but in that 6 7 hours you are going to be full quality work. कुछ एक अगेन अगेन एक सेकंड भी ऐसा वेस्ट नहीं होना चाहिए एंड यू विल हैव टू डू दोज लॉन्ग रैलीज. लड़कियों में रैलीज बहुत लंबी होती हैं एंड देन यू विल हैव टू, एंड अगर स्मैशेस हैं तो इट्स एडेड एडवांटेज फॉर यू. बट लड़कियों का गेम इज गोइंग टू बी लॉन्ग लॉन्ग रैलीज. सो स्टेमिना डेवलप करना है, स्पीड एंड्योरेंस डेवलप करना है, गुड हाफ स्मैशेस डेवलप करना है, नेट गेम हैज टू बी रियली स्ट्रांग. सो दीज आर द थिंग्स विच विल कम इन 6 7 hours. एंड खाने का उन्होंने चेंज किया काफी हद तक. एंड आई थिंक दोज रिजल्ट्स इनिशियली जो आए वो बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस आए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक बड़ा टूर्नामेंट जीत लिया था. तो ही पास दैट ऑन टू अस, मी एंड 3 4 अदर प्लेयर्स. बट उससे पहले जो फाउंडेशन बन गई थी विद कोच लाइक गोवर्धन रेड्डी, नानी प्रसाद सर, दैट वाज आई थिंक अ वेरी बिग फाउंडेशन फॉर नेशनल्स एंड अच्छा स्टेमिना के लिए, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड के लिए. गुस्से वाले कोचेस थे वो लोग. तो उन्होंने ऑलरेडी हमें एक अच्छे लेवल पे लाके खड़ा कर दिया था. एंड गोपी सर फ्रॉम देयर देन ऑन ही जस्ट टुक अस टू अ लेवल एट द हाईएस्ट, मतलब इंटरनेशनल लेवल के लिए कैसे ट्रेनिंग की जाती है, कैसे खाना खाया जाता है और कैसे अपने माइंड को रिलैक्स किया जाता है. तो ही हेल्प्ड अस दैट वे. एंड वो जंप जो था नेशनल से इंटरनेशनल लेवल, वो गोपी सर की वजह से हम सब प्लेयर्स के लिए था. So while badminton is a physical intensive game, I think it's also played with mind. Mm-hmm. And when you do that, your mindset could actually help you get those extra points or make you lose a game altogether. And as like every other sports person, you would have also faced setbacks, whether it's in a tournament, it's in a game, you thought you would have won it, but did not happen, did not go your way. And then we live in a
media centric world where on one side when you do well people put you on top, on Yeah. the other side when your game is not so well, there is also a lot of critic around it. How do you deal with setbacks, and how do you still make sure that you continue with your journey with same persistence, like waking up every single morning, getting into the same mindset of making sure that you are designed to win? Yes. How does that happen? आई थिंक फैक्ट इज दैट इंडिया में तो काफी हद तक इस आप अच्छा करोगे तो ही सब ठीक रहता है. Right. इट्स वेरी डिफिकल्ट हियर इन इंडिया स्पेशली, क्योंकि वो कल्चर आया नहीं है अभी तक स्पोर्ट्स का. उतना ज्यादा जो अगर आप देखेंगे चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, उनका एक अलग ही कल्चर है. तो अगर आपका जो बच्चा है वो स्टार्टिंग भी कर रहा है तो आई थिंक दे हैव सम गुड अमाउंट के वो स्टेट लेवल खेल ले, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल ले, या उसका फ्यूचर कुछ हम सिक्योर कर सके. आई थिंक कुछ ऐसे उनके प्लान्स हैं ताकि वो ना पढ़ाई नहीं करते हैं वो लोग चाइनीज. तो वो तो अगर स्पोर्ट्स में है तो दे आर इनटू स्पोर्ट्स, एंड देन आफ्टर द स्पोर्टिंग थिंग दे विल कम इनटू कोचिंग Right. इन द नेशनल टीम. तो वो अभी इतना प्रोफेशनल हमारे कंट्री में हुआ नहीं है. हो रहा है, और थैंक्स टू आई थिंक लास्ट 10 ईयर्स से जो हमारे गवर्नमेंट है वो काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं. इतने सारे स्कीम्स आ गए हैं. टॉप स्कीम है, खेलो इंडिया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, Yeah. जो इतने सारे फंडिंग कर रही है. एंड दैट टू नॉट ओनली द टॉप प्लेयर्स बट ऑल्सो द नेशनल चैंपियंस, उनको भी डिफरेंट स्कीम से अभी हेल्प मिल रहा है. इतने सारे फाउंडेशंस आ गए हैं. बट आई थिंक वो टाइम पे ना इट वाज जस्ट दैट अगर आप परफॉर्म करोगे, इफ यू अप्रूव करोगे अपने आप को, तभी आपको सब कुछ मिल सकता है. तो चैंपियन माइंडसेट आई नो सबके पास नहीं होता है, बट Right. काफी टैलेंटेड प्लेयर्स भी हैं जो अच्छा खेल सकते हैं, एंड दे कैन डेफिनेटली बी इन टॉप 10. साल में 17 टूर्नामेंट्स होते हैं. नॉट दैट दे विल विन एवरीथिंग, या हम भी सब टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते हैं, बट उनका लेवल इतना तो जरूर होता है कि वो सेमीज और फाइनल्स खेल सके, एक करियर बना सके अपना बैडमिंटन में, और क्या पता कि कुछ टाइटल्स उनको आ जाएं कभी Right. भी. और चैंपियन जो होते हैं ऑफ कोर्स आप उनको देख सकते हैं कि बहुत जल्दी टाइटल्स आ जाते हैं, जीत लेते हैं, काफी लंबा टॉप 10 में रहते हैं. जैसे कि इफ आई गिव यू माय एग्जांपल और सिंधुज एग्जांपल, वी बोथ वर इन टॉप 10 फॉर ऑलमोस्ट लाइक 12-13 ईयर्स. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स दोनों ने ओलंपिक मेडल जीता. लेकिन हमारे साथ काफी दूसरी लड़कियां भी थीं जो खेलती थी और हमारे साथ इक्वल ट्रेनिंग करती थी. तो अगर उनको भी वो सपोर्ट रहता बचपन से, थोड़ा बहुत उनको भी टूर्नामेंट्स का और फंडिंग रहता, और खेल सकती वो. आई नो जो मैं हाईएस्ट लेवल की बात कर रही हूँ वो सिर्फ टॉप 25 प्लेयर्स की बात कर रही हूँ. टॉप 50 में जो है या टॉप 75 में जो है, उन सबको ये फंडिंग इतना सपोर्ट नहीं मिलता है. मतलब इफ यू वांट टू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल, आपको उसी लेवल का ट्रेनर चाहिए, उसी लेवल का फिजियो चाहिए, उसी लेवल का डाइटिशियन चाहिए, उसी Right. लेवल के कोचेस चाहिए. तो वो सब चीज़ों में ना दिक्कत आ जाती है. आई फील कि कहीं ना कहीं आपको ट्रेनर अच्छा नहीं मिल पाता है या फिजियो अच्छा नहीं मिल पाता है, तो बॉडी का टेंशन रहता है. अगर बॉडी ठीक नहीं है तो ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो पाती है. तो और आपको पॉलिटिक्स से बचना है, तो वो अगर सब कुछ आपको करना है तो आपको टॉप 25 में या टॉप 20 में रहना ही है. तो दीज आर द थिंग्स आई थिंक अभी हमारे कंट्री में इम्प्रूव हो रही हैं काफी हद तक. जैसे टॉप 25 की मैंने बात करी, अगर वो टॉप 50 या टॉप 75 का हो जाए कहीं ना कहीं, और उनको सपोर्ट मिल जाए, तो आई थिंक ज्यादा बच्चों को सिर्फ गेम का ही टेंशन रहना चाहिए. जॉब का टेंशन, मैं खेल के बाद क्या करूंगा इसका टेंशन, या क्या करूंगी इसका टेंशन, ये काफी हद तक हमारे जो प्लेयर्स में है. और मुझे ये लगता नहीं है कि चाइना, जापान, कोरिया, इन प्लेयर्स में ये दिक्कत है कि मैं खेलने के बाद क्या करूंगी, मुझे फंडिंग नहीं मिल रहा है. उधर उनके जो आई थिंक टॉप 50 में भी जितने प्लेयर्स मैंने देखे हैं, उन सबको टीम में चांसेस मिलते हैं खेलने के लिए. और उनका देखा जाता है, उनका जो फिजियोज है, ट्रेनर्स हैं, सबके लिए एक ही रहता है मोस्टली. और वन ऑन वन कोचेस तो आजकल मिलने लग गए हैं, जो हमारे टाइम पे नहीं था. हमें एक ही कोच 30-40 प्लेयर्स को ट्रेनिंग करवाता था. लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि आप स्पोर्ट्स में हैं तो आपको हर एक टाइम अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा. अदरवाइज इट गेट्स डिफिकल्ट. आई थिंक किसी भी फील्ड में इट गेट्स डिफिकल्ट. अगर अगर आप टॉप में हैं तो यू कैन डू वॉट एवर यू वांट. आप जितना आप डिमांड करोगे आपको सब चीजें मिल जाएंगी. बट कहीं आप बीच में अगर
अटक जाते हो नेशनल से इंटरनेशनल लेवल के बीच में हो और लेकिन केपेबल हो वो करने के लिए, राइट। तो तब अगर आप नहीं प्रूव कर पाए अपने आप को, 2-3 साल वेट करे, इंजरीज होने लगे, डेफिनेटली आप स्ट्रेस में जाएंगे, लेकिन सपोर्ट भी आपको कम मिलता रहेगा। फिर आप सोचेंगे कि पढ़ाई कर लूं, पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है। पेरेंट्स काफी हद तक आजकल के बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोर्ट में बाजू में वर्ल्ड चैंपियन खेल रहा है या वर्ल्ड नंबर 1 खेल रहा है या सात्विक चिराग खेल रहे हैं, श्रीकांत खेल रहे हैं, तो दे ऑल हैव समवन टू लुक अप टू। तो राइट। आजकल के पेरेंट्स को ये बिलीव भी आ रहा है कि हाँ मेरा बच्चा भी कुछ कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाते हैं क्योंकि लगता है कि कल ही हम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएं या कल ही ये हो जाए। तो आई थिंक पेशेंस इज रिक्वायर्ड टू बी अ चैंपियन। अगर बच्चे में क्वालिटी है, डेफिनेटली वो प्रूव करेगा, रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि जो भी एकेडमीज अब इंडिया में हैं, 3-4 वो बहुत बड़े एकेडमीज हैं, वहाँ पे जो भी बच्चे खेल रहे हैं उनके पास अच्छे कोचेज हैं। बट आई स्टिल फील सिर्फ खेलने से नहीं होगा, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा हर एक बार, और वही चैंपियन माइंडसेट होता है। और उसके लिए अगर आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़े अपने आप भी, तो वो भी जरूर कीजिए। आई नो समटाइम्स कोचेस माइट से कि ज़्यादा होगा, इंजरी हो जाएंगी, बट आपको ये माइंड में रखना है कि कितना एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं, कितना आपका बॉडी ले सकता है। राइट। और अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि क्रिस्टियानो भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करता है, वो बोलता है। फिर उसके बाद माइकल फेल्प्स ने भी संडे को ट्रेनिंग किया 8 घंटे, ताकि वो 8 ओलंपिक गोल्ड ले जाए इन 2008। कितने सारे प्लेयर्स जो टॉप पे रहे हैं उन्होंने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करी है ताकि ताकि वो जीत सके। तो चैंपियन माइंडसेट उससे ही बन जाता है जब आप इतना अपने आप को पुश करते हैं, इतना डिसिप्लिन रहते हैं, इतना आपके दिमाग में एवरी मिनट, खाना खाने के टाइम पे भी ये लगता है कि वो तो ये नहीं खा रहा होगा, वो तो एक्स्ट्रा शुगर नहीं ले रहा होगा जिसको वर्ल्ड चैंपियन बनना है। तो एवरी मिनट यू आर थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट टूर्नामेंट किसके साथ खेलना है। मेरा जो रिजल्ट इसके साथ अच्छा नहीं रहा है, तो आई बेटर सी हर मैचेस अगेन एंड अगेन। आई हैव टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। आई हैव टू मेक श्योर नेक्स्ट डे प्रैक्टिस में मैं उसको और बेटर कर सकूं और अच्छा कर सकूं, ताकि अगर हेड टू हेड 10-0 भी क्यों नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि इस बार मैं जीतूं उसको। काफी प्लेयर्स के साथ हो जाता है, आप काफी मैचेस हार जाते हैं, एक प्लेयर डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए भी रास्ता ढूंढना पड़ता है। दैट यू हैव टू वॉच द मैच, यू हैव टू इम्प्रूव दो शॉट्स। तो जो बच्चा उतना क्रेजी होता है एवरी मिनट कि जो मेरा अपोनेंट कर रहा है मुझे उससे बेटर करना है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई बॉडी, इंजरीज हो गई तो दैट इज व्हेन स्ट्रेस कम्स इन अ लॉट मोर, क्योंकि एवरी मिनट यू विल हैव टू सिट एंड वॉच। सिट एंड वॉच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर प्लेयर्स जो इतने साल से आप पुश कर रहे हैं। सडनली यू विल हैव टू सिट एंड वॉच, मैं कब खेलूंगी, मैं कब कुछ करूंगी। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। Frustrating, it's frustrating, it's definitely, you want to cry, you want to shout on everyone, you will want to let your emotions out, but वो चलेगा, you can express it out on your coaches, on your parents, अपने भाई बहनों पे कर लो, but there will be and there should be a limit, क्योंकि आप कितना रोगे, रोने से बेटर है आप जिम में जाके अपना रिहैब करो, रिहैब करके वही स्टैंडिंग स्ट्रोक्स कर लो, अगर आपके लेग में इंजरी नहीं है तो थोड़ा रनिंग कर लो, अगर हैंड में इंजरी है तो लेग का वर्कआउट कर लो, अगर लेग में कुछ इश्यूज हैं तो हैंड के वर्कआउट कर लो। सो कीप योर सेल्फ बिजी, कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड, कीप थिंकिंग अबाउट मेरी रिकवरी जल्दी हो रही है। जितना हो सके मैचेस कम देखो, बिकॉज मैचेस देखने से ऑब्वियसली फील होता है कि आप वहाँ पे नहीं हैं, रात में नींद नहीं आती है, दैट्स फाइन, इनिशियली नहीं सोओगे तो भी चलेगा, बट आपको धीरे धीरे वो यूज टू हो जाएगा। एंड देन जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जितनी भी ब्रीदिंग एक्टिविटी होती हैं या मेडिटेशन होता है, प्लीज कंटिन्यू डूइंग इट। इट्स नॉट ओनली फॉर प्लेइंग, बट आई एम ऑल्सो सेइंग कि एक बार आप खेलना बंद कर देते हैं तो वो भी स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है। राइट। तो उसके साथ साथ आपको हमेशा मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आई थिंक हमेशा कंटिन्यू रखनी चाहिए। बट चैंपियन का फिर से ये जो माइंडसेट मैं बता रही हूँ कि आपको हमेशा अपने आप को प्रूव करना है, इज the only mindset, and never giving up, but that will create even more stress, but you have to be ready for that pressure and you have to enjoy that pressure। जितना आप उसको एंजॉय करोगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। काफी प्लेयर आप देखोगे हाईएस्ट लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आप उनको देखोगे उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत काम है, रिलैक्स्ड है, इस सिचुएशन में बारी बारी आ चुके हैं। हाँ, हमने फर्स्ट टूर्नामेंट से ही रिजल्ट नहीं लेके आए होंगे, मैंने 500 मैचेस खेले हैं अपने करियर में, और कितने मैंने जीते होंगे, 24 टाइटल्स है मेरे पास। तो इसका मतलब है कितने बार मैं हारी होंगी, कितने बार मैं रोई होंगी, उतने बार ही मैं जिम में जाके अपना गुस्सा उतारा होगा, लेकिन उसके बाद जो मुझे नींद आती है, दैट इज द बेस्ट स्लीप। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 बजे आने को कोच बोलता है कभी कभी, इतने टफ मैचेस हारने के बाद,
लेकिन मैंने रो के भी वो ट्रेनिंग किया है। हर एक प्लेयर जो चैंपियन बनता है वो सब रो के भी करते हैं, बट दे आर देयर ऑन द कोर्ट। शोइंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, शोइंग अप इज एवरीथिंग। अगर आपका मन भी नहीं है तो मन भी बन जाता है, क्योंकि दूसरे प्लेयर्स कर रहे हैं Makes तो sense. आपको लगता है वो कर रहे हैं मुझे भी करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी वार्म अप हो जाता है और आप रेडी हो जाते हैं। तो हाँ, हम आई वुड से इंडिया में अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, कल्चर इतना नहीं है स्पोर्ट्स का, बट डेवलप हो रहा है, सब प्लेयर्स अच्छा करना चाह रहे हैं। बट आई वुड स्टिल सी के और सपोर्ट मिल सके तो फंडिंग के मैटर में, Right. क्योंकि वो ही काफी अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स को ले जाता है। फंडिंग नहीं मिलता है तो उनको लगता है कि फ्यूचर इसमें इतना नहीं है, तो इसलिए हम हमेशा क्रिकेट को एज ए टॉप स्पोर्ट देखते हैं और इतना प्यार करते हैं। एंड उसके कंपटीशन में दूसरे स्पोर्ट्स अभी इतने आ नहीं पा रहे हैं, वरना अगर उतना ही सपोर्ट दूसरे स्पोर्ट्स को मिले तो हम भी बैक टू बैक रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। वो बैडमिंटन इज द सेकंड मोस्ट लव स्पोर्ट Right. और अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो अभी थोड़ा डिप आ गया है स्पोर्ट में। अभी दूसरे स्पोर्ट्स में अगर आप देखें, रेसलिंग में, बॉक्सिंग में थोड़ा डिप आया है, बट अगर वो आई थिंक कंटिन्यूअसली सपोर्ट, फंडिंग और बेस्ट कोचेस और ट्रेनर्स रहे दूसरे स्पोर्ट्स में भी, तो क्यों नहीं वो दूसरे स्पोर्ट्स भी बैक टू बैक रिजल्ट्स लेके आएंगे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो थोड़ा मिस हो जाता है, एंड दैट इज व्हेन आई थिंक प्लेयर गिव्स अप, थोड़ा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली आपको सोचना चाहिए, पैसा इज एवरीथिंग, देन यू विल थिंक अबाउट योर फ्यूचर, मेरा फ्यूचर क्या है, व्हाट एम आई गोइंग टू डू इट, व्हाट एम आई गोइंग टू डू इन माय फ्यूचर। तो डिफिकल्टीज रहती हैं, थॉट्स आते हैं, Right. स्ट्रेस रहता है, बट आप अगर अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है तो यू आर ब्लेस्ड टू हैव सम गुड स्पॉन्सरशिप्स, अपना आप लाइफ के लिए आप सिक्योर हैं। बट नॉट ऑल प्लेयर्स आर लाइक दैट, कभी कभी स्ट्रगल से सब मिलता है, तो उनके लिए और फंडिंग और सपोर्ट चाहिए, एंड और अच्छे कोचेस चाहिए, और एकेडमीज चाहिए, Right. एंड द बेस्ट ट्रेनर्स एंड फिजियोज। आई फील बेस्ट ट्रेनर्स एंड फिजियोज कैन चेंज एवरीथिंग। अगर वो हैं तो आप कोर्ट पे बहुत अच्छे से खेल लोगे, क्योंकि आपका बॉडी बिल्कुल सब उन्होंने देखा हुआ है, आपके खाने का सब देख रहे हैं। देन कम्स द कोच एंड कोच। तो जब आपकी ये चीजें ठीक हैं तो वो चीजें ऑटोमेटिकली इजी हो जाती हैं। Two things that comes to my mind. या You brought some important points here. One is discipline and consistency. यस That's been the root of your journey. यस When you look at it from the corporate lenses where we belong, यस this is actually something extremely primary. या But when you look at somebody like you, 2/3 of your life, you've been disciplined and consistent. या You've shown up every single day, या even when the things were downhill नो for you. And it's easier said than done. It's extremely important that winner's mindset. So it's almost like a tip of an iceberg. यस People know you for who you are, यस but probably what we are realizing today through this conversation is you have actually given almost 20 years of your life, 20 plus years of your life, with those numerous sacrifices, those setbacks. You played those battles internally every single morning, या but you did not give up, and that's why you are who you are. So that's very inspiring. You made an important point on funding. A lot of our audience here, we belong to the corporate side of the world. We mean good. We want to do good for our society in multiple forms. We take great passion in making sure that India's flag keeps rising higher and higher. Sports is one way of getting that Getting- glory home. True. But a lot of us, we don't know where to start. I know. So maybe something that you can put light that through our episode, people can realize that if I were to invest Mhm. some money in this sport to make sure that we are contributing towards the future of the sports, Yeah. what could be a good starting point for somebody like us who doesn't have a good understanding of where to start or how to invest? Uh, I think like if suppose I'm here today and I'm sure you will find some top players in badminton who have played really well, और गोपी सर हैं Yeah. या और टॉप कोचेस हैं। आई मीन यू कैन गेट इन टच विद ऑल ऑफ देम एंड यू कैन सी, मतलब ऑब्वियसली रिजल्ट्स न्यूज़पेपर में एवरीडे तो आ नहीं पा रहे होंगे, तो उतनी नॉलेज नहीं होती है, बट यू विल डेफिनेटली हैव लॉट ऑफ नॉलेज ऑन सोशल मीडिया, सब चीज़ें आ रही हैं आजकल, एंड दे कैन रिकमेंड यू लाइक सेइंग दैट के कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं नेशनली, कुछ इंटरनेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अभी टॉप 70 में है, एंड आई कैन इफ दे से के इसका 2-3 साल में बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, एंड प्लीज सपोर्ट दिस किड।
तो मुझे लगता है आप इन कोचेस के या फॉर्मर प्लेयर्स के पास जैसे जाके, या वो आपको कैसे अप्रोच कर सके, ऐसा कोई वे हो सके जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ हो, अगर हो सके तो वो प्लेयर को फंडिंग करना और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब कोच को अगर लेके जाना हो, That ecosystem. यस, दैट होल थिंग, इफ इट इज, चाहे एक बच्चा क्यों ना हो या दो को लेके ऐसे अगर 10-15 लोग आ गए हैं जो फंड कर सके, तो आई थिंक एवरी स्पोर्ट में ये दिक्कतें तो आएंगी भी नहीं। क्योंकि मुझे लगता है काफी हद तक वो एक थॉट ही आपको ऑलमोस्ट खत्म कर देता है कि मेरा इसके बाद फ्यूचर क्या है, Right. इसके बाद फ्यूचर क्या है, स्पोर्ट के बाद मैं क्या कर सकती हूँ। अगर अच्छे से जॉब नहीं मिला, अगर मेरा फ्यूचर सेट नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगी। इतने सारे प्लेयर्स आप देखेंगे खेलने के बाद उनको काफ़ी अच्छे जॉब्स भी नहीं है, तो और कईयों का नाम भी नहीं दिखता है कहीं भी। तो दैट इज़ व्हाट आई डोंट वांट। आई वांट एवरी प्लेयर जिन्होंने अपना लाइफ पूरा सेक्रीफाइस किया है, जैसे आपने अभी बोला, इतने साल अपने करियर पे लगा दिए हैं, और ऑब्वियसली आपको नॉलेज सिर्फ स्पोर्ट्स का ही है, यू डोंट हैव एनी अदर नॉलेज बिकॉज यू वांट टू गिव योर 100% टू द स्पोर्ट। तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं रहा कि आप कुछ और नॉलेज गेन कर सके। तो अगर ऐसे कोई सपोर्ट आए जिससे वो बच्चे को सिर्फ यही थॉट रहे कि मुझे खेलना है एंड आई वांट टू गिव माय बेस्ट कंट्री के लिए, मेरे कोचेस के लिए, और ऑब्वियसली जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए, एंड आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि इतने सारे बच्चे हैं जो अच्छा कर सकते हैं, और जस्ट थोड़ा बहुत और सपोर्ट मिल जाए एंड दे कैन रियली डू वेल, क्योंकि एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। अगर आपको 17 टूर्नामेंट में से सिर्फ 5 टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स स्टिल लेस। द अदर कंट्री प्लेयर्स आर प्लेइंग नॉन स्टॉप बैक टू बैक मेनी टूर्नामेंट्स टू गेन द एक्सपीरियंस। कभी 1-2 साल लग जाते हैं, कभी 3 साल लग जाते हैं, Right. बट वो टैलेंटेड प्लेयर रिजल्ट लेके जरूर आएगा। तो मुझे लगता है फॉर्मर प्लेयर्स, कोचेस, इनसे ही बात करेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि आप डायरेक्टली प्लेयर्स के साथ टच में हो, और प्लेयर्स को जो रिक्वायरमेंट है और फंडिंग है वो उनको डायरेक्टली जाए, Right. और आप उन पे ट्रस्ट कर सके ये फर्स्ट 2-3 इयर्स। अगर आपको फ्यूचर में लगा कि दे आर नॉट केपेबल इनफ, देन यू हैव एनीवेज, यू हैव योर दिस थिंग टू बैक आउट। बट अदरवाइज आपको लगे कि हाँ मेरे सपोर्ट से कोई एक बच्चा अच्छा कर रहा है, देन आई एम श्योर यू विल कंटिन्यू एंड वांट टू फंड these प्लेयर्स टू डू वेल इन द फ्यूचर, एंड इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी स्पोर्ट। एंड विद दैट वी रिक्वायर मेनी मोर academies in India, and physios and trainers and coaches। और अगर ऐसा हो गया, suppose we have these big academies in Hyderabad, Yeah. Bangalore and अभी गुवाहाटी में है, बट वी नीड सच बिग अकेडमीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स मुझे कुछ भी खुद भी पूछते हैं, दीदी हम कहाँ ट्रेनिंग करें। अभी यूपी के बच्चे हैं, कोई पूछते हैं हम कहाँ ट्रेनिंग करें, पंजाब के बच्चे हैं वो पूछते हैं कहाँ ट्रेनिंग करें, या गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया। सो आई थिंक वी आर लैकिंग समवेयर इन दैट। सच अ बिग Infrastructure. कंट्री, Yeah. इंफ्रास्ट्रक्चर और होना चाहिए विद गुड कोचेस, विद गुड वर्ल्ड क्लास कोचेस। क्योंकि जितने भी कोचेस चाइना में या यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में, आई एम श्योर ऑल ऑफ देम आर ओलंपिक चैंपियंस एंड वर्ल्ड चैंपियंस हु आर ट्रेनिंग दी youngsters. So we need that level coaches, that level trainers and physios to be in India as well, so that we can see in the future कि India भी sporting nation है. We can also get so many medals in the Olympics. Like we are getting 6-7 medals, but we should aim for at least 40-50 medals, like how the other countries do. And we are capable enough. When few of us can do it, the whole, I mean, so many of the kids can do it. It's just that वो, जैसे मैंने बोला ना, वो एक सिस्टम नहीं है अभी। अगर वो सॉर्ट हो गया तो आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर हियर। This is very important. I think a very important gist of our conversation is this, because now we're talking about not just about you, Yeah. but how can we, Yes. as corporate India, contribute even better Yes. towards the root of where it's required to contribute, You're right. to make sure that we have many, many more successful players like you You're right. that will make our country proud. I go back a little bit and talk about your journey. Mm-hmm. Everybody, we always say it's not the destination. Mm-hmm. There is more fun in the journey. Yes. So that 12, 14-year-old Saina Nehwal, when you saw that dream along with your mother, Yes. फिर सब कुछ आपके लिए आसान हो गया in a way where you were so determined, everything came, and it was God's way of thanking you Yes. for the hard work that you put in every single day. You won an Olympic. You won so many other championships. Padma Shri, Arjuna Award, Khel Ratna, Padma Bhushan, world's number one. So you're almost like on the peak. You are at the peak. You accomplished everything that a badminton player can dream of.
even if half of it is achieved, then people would say, okay, I had a wonderful life. Yeah. And I contributed towards my coaches, towards my parents, and everybody who believed in me. But it's when your destination hits, that's when the mind starts thinking that what next, Yes. right? So I'll give you my example. So when I was, I wish I was a sports person, but being a Guju, my mind always thought business. And there's always this, and probably I'm talking in front of camera for the first time. Very, very few people who are close to me know this, but not everybody knows about it. I always had this dream as a teenager that मुझे 1 crore रुपया कमाना है. That was like the first thing that I had put. Yes. I mean, 90s kid, 1 crore was a big amount that day. Now, when that hit, and by God's grace, we had many, many, many more crores coming in after that. Now I have another goal post. So the life and the mind doesn't stop. Yes. You keep on setting higher benchmarks. Yes. A lot of gratification in the journey. Now I want to do more for society. Yes. Because that empowerment and that position allows me to do it. Right? Yes. With that same spirit. Yeah. What's the next destination for Saina Nehwal? I think, as you mentioned, when I was 9, when I started playing, जब थोड़ा सा समर कैंप से मुझे रेगुलर्स में प्रमोशन मिल गया, तो आई यूज्ड टू गो, मतलब स्कूटर पे थोड़ा प्रमोशन हो गया बस से मेरा, तो पापा यूज्ड टू टेक मी ऑन स्कूटर अप एंड डाउन, एंड आई यूज्ड टू थिंक मेरे पास भी एक गाड़ी हो, एक बड़ा घर हो, एंड देन दैट्स ऑल. आई डिडंट नो मनी पार्ट. 9-10 साल के बच्चे को इतना नहीं पता, बट एक गाड़ी हो, घर हो, अच्छा गाड़ी हो, ये सब आई यूज्ड टू थिंक. एंड आई वाज लाइक, पता नहीं कैसे होगा, बट आई वांट इट, इट्स माय ड्रीम. तो आई यूज्ड टू से, पापा ने 30-40 साल लगा दिए जॉब पे, इतने मेहनत करते हैं, रोज 9 to 5 होता है उनका. क्या मैं कर पाऊंगी? और स्पोर्ट्स का करियर बहुत छोटा होता है ना. यू गेट टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर 12-13 के स्पोर्ट्स करियर बहुत छोटा हो जाता है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी लाइक एनीथिंग, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है. तो जैसे जैसे 14-15 की हुई, थोड़ा अच्छा कमाने लगी, एंड दैट इज व्हेन आई वाज लाइक, अब घर भी चाहिए, नो, आई जस्ट हैड दैट एम कि मुझे घर चाहिए, ये सब चाहिए, और चाहिए चाहिए बस. आई वांटेड, आई इफ फॉर दैट आई हैव टू रियली वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड. कितना भी क्रिटिसिज्म हो, कितना भी सुनने को मिले, दैट्स फाइन, बट दिस इज माय एम एंड आई वांट टू डू इट. एंड यू वोंट बिलीव कि जो मैनिफेस्टेशन आपने बताया, वो मैंने 19 ईयर्स में, आफ्टर द ओलंपिक्स, जो फर्स्ट ओलंपिक्स हुआ, उसके बाद मैंने अपना एक घर लिया. मैंने जब 19-20 की थी, जब मैं 3 सुपर सीरीज बैक टू बैक मैंने अच्छा परफॉर्म किया, जीती मैं, तो मैंने एक गाड़ी भी ली. एंड देन आई वाज लाइक, पापा जो आप 30-40 ईयर्स में किया, वो मैंने अभी कर दिया. एंड आई टू मेक फन ऑफ इट. इट्स लाइक, बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू और अचीव करे, तू और अच्छा खेले. जो मैंने किया वो मेरे किस्मत में था. मुझे ऐसा करना था. तेरी किस्मत में स्पोर्ट्स है, you do it, you better focus on playing well. ये part of life है. His experience helped me at that point of time. He said, घर है, गाड़ी है, you are happy with it, but just remember it's a part of your life. It's not, you're not going to be happy with it. Correct. Make sure you are training well. बट मुझे क्या पता था, मुझे तो लगा ठीक है, आ गया. आप तो जब तक आपको खुद हिट नहीं होता ना, आपको लगता है कि ठीक है, सब ठीक है. बट देन यू आर स्टिल प्लेइंग, यू 20 ईयर्स ओल्ड. अब अभी आपका करियर और 10 ईयर्स है, आपको और आगे खेलना है, ओलंपिक का मेडल लेके आना है. एंड आई रियलाइज ओलंपिक मेडल के बाद थोड़ा एक फेज आया जहाँ पे आई वाज नॉट प्लेइंग वेल, थोड़ा नीचे रैंकिंग आ गया था मेरा, वर्ल्ड नंबर 2 से. एंड आई वाज सडनली, आई एम फीलिंग कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. That is when obviously you're earning so much, you're getting so many sponsorships, you're winning so many super series, but you have lost 7 world championship quarterfinals. You have an Olympic medal, you're world number 2, but why is that कि आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल नहीं आ रहा है? एंड यू आर स्टक देयर, एंड यू आर लाइक, आप अपने घर में भी हो तो आप टीवी देखने का मन नहीं कर रहा है, घर का भी मतलब वो अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है. बिकॉज फाइनली व्हाट ही सेड वाज राइट, दैट यू विल बी हैप्पी इफ यू आर ट्रेनिंग एंड यू आर डूइंग वेल. बाकी ये सब चीज तो आती रहेंगी इफ यू आर डूइंग वेल. Life actually revolved around your game. इमेजिन, आई डिडंट नो कि मुझे एक दिन अपना घर वो सब छोड़ के जाना पड़ेगा बैंगलोर फ्रॉम हैदराबाद, टू ट्राई इट आउट कि मैं कुछ चेंज ला सकूं अपने गेम में, और वर्ल्ड नंबर 9 से कुछ बेटर कर सकूं, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल लेके आ सकूं. बिकॉज 7 टाइम्स लूजिंग इन द क्वार्टर फाइनल्स, कहीं ना कहीं वो ब्लॉक हो जाता है फिर. दैट क्वार्टर फाइनल्स बिकम्स लाइक अ हॉन्टेड थिंग फॉर यू. अब इससे आगे हो पाएगा कि नहीं. एंड दैट वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2015, 14 एंड में मैंने मूव किया बैंगलोर में, एंड आई वाज सो सेटिस्फाइड इन लिविंग इन अ स्मॉल रूम
कैन यू बिलीव इट, एक छोटा सा एकेडमी में रूम में थी मैं मम्मी के साथ, एंड आई वाज लाइक रोज अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, थोड़ा चेंज हो रहा है, एंड माय एम इज नाउ टू बिकम वर्ल्ड नंबर वन। जो मुझे ऑब्वियसली टू तक तो हासिल हुआ, बट वर्ल्ड नंबर वन बनने के लिए मुझे 6 साल लग गए उसके बाद, Wow. बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, मेडल्स आए, लेकिन वर्ल्ड नंबर वन बनने के लिए मुझे हैदराबाद से उधर शिफ्ट होना पड़ा। पापा अकेले मेरे डॉग के साथ घर पे रहते थे, मम्मी यूज टू बी देयर विद मी इन बैंगलोर। तो हम वहाँ पे 3.5 years रहे, और वहाँ पे जो जाके मेरे गेम में चेंज आया, ही वाज सेइंग फर्स्ट थिंग मेक श्योर यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट इफ यू मूव टू बैंगलोर, क्योंकि बचपन से यू हैव स्टेड इन हैदराबाद, नाउ यू आर ट्राइंग टू मूव टू सम अदर प्लेस, सो मेक श्योर यू आर डूइंग इट 100%, जो माइंड में है वो सही से करना। एंड आई टुक द रिस्क, आई वाज लाइक बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आई डिडंट ट्राई इट, Mhm. एंड आई मूव्ड देयर इन 2-3 months फ्रॉम वर्ल्ड नंबर 9 आई बिकेम वर्ल्ड नंबर वन। I played the finals of All England. I got my first World Championship medal, silver Wow. medal. I was so happy that I got world number one ranking in India Open, where I won, and I defeated Ratchanok from Thailand. I was like, oh my God, I took a good decision of moving, because sometimes you It get was worth stuck. it. You get stuck. You're trying to find solutions, but at that point of time, one-on-one coaches nahi the. One coach is looking after 30-40 kids. So I tried to move to Bangalore to train under Vimal Kumar sir, and he helped me so much that थोड़ा गेम में चेंजेस आए, एंड आई कुड इम्प्रूव सो मच दैट मेरा 9 से 1 पे रैंकिंग आया, एंड आई कुड डिफीट सम प्लेयर्स जिनको मैंने पहले नहीं हराया था, एंड इतने सारे टाइटल्स आए उसके बाद, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल नंबर 2 भी आया। बट जो सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक उधर हुआ मेरा, वो था 2016 ओलंपिक्स में, क्योंकि उधर मैं मेरे को सेकंड रैंक मिल गया था इन दी ओलंपिक्स, एंड आई वाज सो प्रिपेयर्ड वेल, क्योंकि उससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीत गई Correct. थी। मैंने मतलब इतना अच्छा फ्लो चल रहा था कि आई वाज लाइक लास्ट टाइम मेरे को ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल आया था, इस बार आई विल डेफिनेटली गेट अ बेटर वन, मतलब इतना प्रिपेयर्ड थी मैं। बट आई डोंट नो, मैं प्रैक्टिस में गिरी नहीं, कुछ भी मेरे को चोट नहीं लगी। एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो गई थी नी में, विच एक्चुअली ब्रोक ड्यूरिंग दी ओलंपिक्स। आई मीन आई कांट बिलीव दैट कि जो बोन ग्रोथ थी वो हो जाती है प्लेयर्स को, यू गेट दोज ऑस्टियोफाइट्स बॉडी में आ जाती है, तो यू विल हैव टू मेक योर मसल सो स्ट्रांग दैट वो उन चीज़ों को संभाल सके। तो इतने साल आप खेलते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो जाता है। आई वॉज सो सरप्राइज कि ये पेन कम ही नहीं हो रहा है, इनफैक्ट उससे पहले कभी मुझे मेजर इंजरी नहीं हुई। I was so blessed with good body that I could push hard, and उतने बड़े injuries नहीं हुए। But I went to the doctor before the Olympics, and he was like, maybe some swelling या fat pad inflammation होगा आपके नी में, तो वो ठीक हो जाएगा। But I was like, ठीक है, 2-3 दिन रेस्ट करके देखते हैं। But then I had to go to Rio, and it's like 30 मतलब 30 hours की जर्नी है, and I'm like, am I doing the right thing? And Papa also wants to come and see this time. सो ऑल दिस वाज क्वेश्चन मार्क कि क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मैं जाऊं या नहीं जाऊं, चलो 3 days के बाद देख लेते हैं, क्या पता वहां जाके ठीक हो जाए। Right. और आई विल टेक दी इंजेक्शन, कॉर्टिजोन इंजेक्शन, जो मुझे हेल्प कर दे कि मैं वो मैचेस खेल लूं। बट आफ्टर 3 days आई गो फॉर प्रैक्टिस देयर, एंड इट स्टार्टेड अगेन, द पेन स्टार्टेड अगेन। वी पुट सम हेवी टेपिंग ऑन द नी, इट्स नॉट स्टॉपिंग, द पेन इज स्टिल देयर इन द लंजिंग, एंड नाउ द डाउट इज दैट will I be able to play the match? Now, next day is the match. We tried the injection part. I was limping. I was still limping. I was not at all happy, but I've come so far now and I have to play the match. I played 2 matches and it was quite close, it got very close. Lunging was very difficult and I lost the second round. And that day night itself, I was telling Papa, I'm changing the ticket and we are going back. And he's like, 2-3 दिन पहले ही तो आए हैं, अभी तो थोड़ा 1-2 दिन। मैंने कहा नहीं पापा, आई कांट स्टे हियर एनी मोर, इट्स नॉट, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय नी, एंड इफ आई एम ट्राइंग टू focus on playing more, I have to go back and see what it is. Then we took the flight to Mumbai instead of Hyderabad. Directly went to Mr. Padiwala sir there in Mumbai, and he was like, first let's go for an MRI. And that is when he was like, before I tell you, I'm like, he was like, hats off, I would have cried if I was in your position. You have played 2 matches with this, your extra bone growth actually
that broke and it is hurting your tendon. Oh, So whenever you're lunging, the tendon is getting hurt with that small bone over there. And I was like, sir, karna kya hai iska? What is the option? He's like, I'll give you two options. Otherwise, go for the surgery, or you can rest and see for 4 months how it is. I'm like, sir, what do you think is the best option? He said, surgery is the best option. So get it removed and then you see how it is. But till the Olympics were happening, I didn't even realize कि मैं उसमें नहीं हूँ. माइंड में वही चल रहा है. आई एम सीइंग द मैचेस एंड आई एम स्टिल नॉट बिलीविंग कि आई एम इन द हॉस्पिटल. वो मेरी सर्जरी हो गई है. नाउ आई एम रेस्टिंग एंड सीइंग द मैचेस. ओलंपिक्स होने के बाद 10-15 दिन के बाद रियलाइज होता है कि आई एम एक्चुअली प्लास्टर में हूँ. मेरे को दर्द है. अब फिर से रिहैब करना है एंड 4 मंथ्स का रेस्ट करना है. उसके बाद आई हैव टू कम बैक. But yeah, that was the most difficult, I think, time of my career क्योंकि वो Olympics था and everyone was hoping for the best. We इतना दूर गए first of all, that was the thing, big torture वही था. And Papa was like कि अब फिर से rehab करो, this is your job. मम्मी was like सीधा बोल रही थी फिर से rehab करो. अब you can't give up like this is not the way. Let's go to the gym, हम भी करते हैं तेरे साथ. I'm like, नहीं मुझे मन नहीं है. Then you should come. And then the trainers were there. They were very helpful. Every day they were like swimming करते हैं, चलो ये करते हैं. They were distracting my mind. And 2-3 months के बाद when I entered the court, again the mind was fresh. When you see the court, you feel so good. feel home. Home. अभी कोर्ट पे आ गए हैं. अब तो I think 1-2 months में I'll be back. And that is when after fourth, fifth one, I won the Malaysia Open again. That year was again very special. I played the finals of Denmark Open. I got the Asian Games bronze medal. I got the World Championship medal again, bronze medal. I won the Indonesia Open. So there were a lot of results after the surgery also. But yes, that heartbreak of the Olympics will remain and it will always remain because everyone has that only one take in the Olympics and it comes once in 4 years. I got the opportunity to play it 3 times, but but I'm so proud that के medal आया मुझे because when I was fifth, sixth standard में जब मैं थी and I used to read about Milka Singh ji and PT Usha ji, I was like उन्होंने मेडल जस्ट मिस कर दिया एंड कितना बुरा फील होता होगा. आई डोंट नो, आई यूज्ड टू फील दैट काइंड ऑफ कैसा फील होता होगा व्हेन यू हैव ओनली 3 मेडल्स एंड आपको आने ही वाला था मेडल एंड आपने मिस कर दिया. तो इनफैक्ट मैं उनके साथ पीटी उषा जी के साथ एक इवेंट भी कर रही थी एंड समवन आस्क्ड हर अबाउट दैट क्वेश्चन. तो थोड़ा सा वो फीलिंग आ जाता है कि अगर वो मेडल आ जाता मुझे. सो आई फील सो ब्लेस्ड कि मेरे पास वो मेडल है. एटलीस्ट मैं चैन की नींद सो सकती हूँ कि व्हाट आई ड्रेम्ट ऑफ या व्हाट माय मॉम ड्रेम्ट ऑफ, एटलीस्ट मैं वो मेडल हासिल कर पाई. So a lot of redemption in एंड your यस life. यस, That's सो fantastic. दैट्स द थिंग, वो एक नहीं तो नींद नहीं आती है एज ए प्लेयर. यू प्ले फॉर द ओलंपिक्स क्योंकि आपका जो डिफरेंट स्पोर्ट्स, मतलब जैसे रेसलिंग, सब अलग अलग स्पोर्ट्स हो गए, बॉक्सिंग, ये सब उनका सपना ही ओलंपिक्स होता है क्योंकि दैट इज व्हाट मेक्स यू, मतलब एक ओलंपिक चैंपियन, अच्छा अच्छा लगता है. तो यस, आई हैव दैट मेडल एंड समटाइम्स आई डोंट बिलीव इट कि मैंने इसके लिए स्टार्ट किया था और ये मेरे हाथ में है. आई फील सो ब्लेस्ड के मुझे वो मेडल मिला एंड आई कुड इंस्पायर सो मेनी यंग किड्स एंड एक रास्ता खोला कि ये पॉसिबल है. क्योंकि उससे पहले मुझे नहीं लगता था कि इतना इजी हो सकता है या हम जीत सकते हैं. बट आज देखिए, इंडिया एक पावर हाउस है बैडमिंटन में एंड Yep. वी आर नॉन स्टॉप परफॉर्मिंग एंड डूइंग वेल at the highest level, which is a very positive sign that we are coming close to all the top countries. Yeah. I can visualize आपके घर में एक फेम ऑफ वॉल होगा. जी जी जी. उस पे सबसे टॉप में क्या ओलंपिक मेडल है क्या? सबसे टॉप पे ओलंपिक मेडल है, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है, फिर पद्म भूषण, Wow. ये सब छोटे छोटे उनके मेडल्स रहेंगे वहाँ पे. तो मुझे वो देख के अच्छा लगता है. फिर चाइना ओपन टाइटल्स, इंडोनेशिया ओपन, सब टाइटल्स हैं वहाँ पे. हम लाइक कितने साल लग गए होंगे सब अचीव करने के लिए, कितने लोग अचीव करना चाहते हैं इसको और मुझसे पूछते हैं कैसे होगा. 2 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल है मेरे पास इंडिविजुअल एंड आई वाज लाइक माय गॉड. लगता तो इजी है बट 11 सुपर सीरीज टाइटल्स, बट ये इजी होता नहीं है क्योंकि व्हेन यू सी समवन लाइक ली चोंग, Yeah. he's got 75 सुपर सीरीज टाइटल्स. आई मीन ठीक है मलेशियन है बट वो चाइनीज आई थिंक है उनके Correct. पेरेंट साइड में या कोई. तो आई एम लाइक वो लोगों के से कंपेयर करें तो 11 सुपर सीरीज टाइटल तो बुरे नहीं है, एज एन इंडियन. आई Absolutely. थिंक आई डिड प्रीटी वेल.
और So you have like a vault, a security, or is Chopsy guarding that space? no, it's just there. You enter the house and it's a big. There's a what do you say, wall where all these medals and everything is put, and Chopsy is guarding, Papa is guarding, I guard it, and we keep looking at it. But yeah, as I mentioned, sports person career is very short, and whatever you do will always remain close to your heart. You remember everything, and I think I was fortunate enough to be in sports, and मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी भी अगर अगला जन्म भी हुआ या नहीं और जो भी है तो एक स्पोर्ट्स पर्सन ही बनूं बिकॉज sports I think is the best. It teaches you a lot. Yeah. Hats off to your commitment to your game. I recalled as you were talking, right? I recalled Yuvraj Singh's very special line, and he was like in his own style. जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाठ है. बिल्कुल. And I'm sure that is something because any sportsman, whether it's badminton, whether it's cricket or any other game for that matter, you all retire young. You're still in your mid 30s, maybe late 30s, and like one thing is constant for life, which is the life must move on, and then you pass the baton to younger players. Yes. I see a lot of sense of satisfaction, obviously for right reasons, a lot of sense of accomplishments. I don't want to draw parallels here, but you are the Sachin Tendulkar of badminton for India. You are the greatest of the great, right? So to that respect, I think you have accomplished everything that an Indian badminton star could dream of. You actually set that benchmark for others to take inspiration, and future generations will look up to you as somebody who's done it for us. Yeah. What do you feel? You ever had that traumatic mindset that what would be next once I leave up the game, or you were very satisfied with the journey? What was that exit moment like? No, I didn't like the exit. You know, it was a bad exit. My cartilage was totally gone of the right knee, and I mean, you can call it like arthritis maybe, and that happens usually when you're 60, 70 years old. But in player's career, I think you've played for so many years, so the degeneration happens quite quickly. But I didn't know the degeneration is so bad that I can't do so many lunges now. It started hurting really badly that my knee used to get a lot of swelling. So I tried to take a lot of injections to get that swelling out, and to feel the cushion there, all those injections are there. But they used to put it in the joint, so it used to be quite painful. Yeah. And I tried for a few times, and I started crying. It's very difficult to continue like this because there is a solution for pushing 7 to 8 hours now. If I have to play at the highest level and where I have been for so many years, now I can't see myself, I think, playing at a lower level because I have the capability of playing at the highest level. Makes sense. So when I'm pushing, it's hurting. I can't keep icing the whole night. I have to rest. If I don't rest, how will I train well? True. So these are the things, everything comes together to be a champion. But if one thing is missing, you cannot do anything. You cannot achieve what you want to. So this happened in 2021. Slowly it started, but by 23 it became really bad. So I had to go to Padiwala sir again, and I asked him, sir, is there any solution? He's like, there's no solution. The degeneration is very bad. And अगर नी पूरा टूट जाता तो फिर भी मैं उसको ठीक कर सकता था. But this is something like you can't do much about it. I can't guarantee that after the surgery also you will be fine and you can play at that level. So you are not a machine. Finally a human being. Take a decision. It's tough, but that is how the life is. So then I was meeting quite a few former players as well from Denmark and from Indonesia. So they were also mentioning that हमें भी ये cartilage का issue हो गया था. Even Mithali Raj had the same issue, cricketer जो है हमारे. तो I'm like, सबको I think game ऐसा छोड़ना पड़ता है because finally you can't play. Body gives up. Body gives up. And then वो अपने टर्म्स में आपने नहीं गिव अप किया है और अपने टर्म्स में आई थिंक आप गिव अप करेंगे भी नहीं. Look at it from that perspective, right? आपने अपनी बॉडी से 25 साल में 60-70 साल का काम करवा दिया. जी जी जी. नहीं, वही आप अपने टर्म्स में खत्म करना चाहते हैं ना. आप कुछ ऐसा जीत के खत्म कर दे कि ठीक है अब इट इज नाइस, छोड़ दिया, अच्छा करा. लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो इच्छा से नहीं हुआ है, बट मुझे नहीं लगता आपकी जर्नी में आपने कुछ भी बाकी छोड़ा है. नहीं, कोई छोड़ना ही नहीं चाहता ना. दैट इज व्हाट यू फील लाइक प्लेइंग ना. यू फील लाइक जस्ट प्लेइंग. और अच्छा लगता है वहां पे कोर्ट पे रहेंगे और जब तक आप कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, व्हाई नॉट.
यू कैन कंटिन्यू इट। अगर आप चलो जीत नहीं रहे हैं बट फाइनल सेमीज खेल रहे हैं, दैट्स आल्सो बिग इनफ फॉर योर लेवल। बट या आफ्टर 34 35 इट गेट्स लिटिल डिफिकल्ट। बट मैंने ट्राई किया जितना कर सकती थी। आई एम हैप्पी, आई नेवर फेल्ट सैड अबाउट कि कैसा करियर एंड हुआ। बट अगर मेरे टर्म्स में होता या मैं कुछ खेल के रोकती तो और अच्छा लगता। बट ऐसा होता है प्लेयर्स के साथ, सो आई वॉज फाइन विद इट। बट yeah, one thing I remembered was to calm your mind down, because it's always active, it is always in that high mode ke karna hai, training training training. So that thing what Gopi used to say, Gopi sir used to say at that point of time that meditation karo, relax रखना है, और 30 years है after you are playing, we should take it easy। नहीं हो जाएगा ना, क्या है खेलने के बाद तो we will be just having, मतलब कुछ करने को ही नहीं है बैठ के। मतलब या तो ट्रेनिंग कर लो या घर पे आके बैठ जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। और इतने अच्छे लेवल पे खेल लिया है कि उतना पैसा तो है कि एक लाइफ तो जी लेंगे। एंड देन बट आई डिडंट नो इट्स क्वाइट स्ट्रेसफुल आफ्टर प्लेइंग। Because you never seen the world beyond the court, बियॉन्ड right? दैट एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, इट्स मोर स्ट्रेसफुल। ये तो वो खेलना ही इजी था एक्चुअली, बट देन कोचिंग करना उससे भी डिफिकल्ट है। इफ यू कोच यू हैव टू बी देयर फॉर 9 to 10 hours। बच्चों को भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के, आप 25 साल से वही किया और बॉडी ऑलरेडी इतना थका हुआ है, एंड देन अगेन आप कोचिंग करेंगे। तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट मेंटली, क्योंकि आप पहले अपना प्रेशर लिया है इतना, Correct. अब उनका प्रेशर लेने वाले हो। आई एम लाइक नहीं होगा मुझसे, कोचिंग तो नहीं होगा, बट आई डेफिनेटली फाइंड अ वे टू रिलैक्स काम। एंड आई विल हैव टू फाइंड इट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको अब एक नॉर्मल लाइफ भी जीनी है। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े आपको, यू विल हैव टू फाइंड दैट वे। एंड एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए सेड, आपका एक नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होता है। तो वेदर वो मेडिटेशन से हो, वेदर वो किसी गुरु के पास जाके कुछ सीखने से हो, तो जरूर कीजिए, क्योंकि इट्स योर लाइफ एंड यू वांट टू मेक इट नाइस एंड काम एंड रिलैक्स। नहीं तो वो आप फिर भी अच्छा ही रखे रहेंगे, बट वो स्ट्रेस रहेगा हमेशा के, हाँ गेम छोड़ दिया है, अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे। सो माइंड इज ऑलवेज एक्टिव, वो तो रहता है, बट मैंने कहीं ना कहीं वो थोड़ा सीखा है कि कैसे थोड़ा रिलैक्स करूँ अपने आप को। और इतने सारे इवेंट्स हैं जहाँ पे आई गो एंड मोटिवेट यंग किड्स। मोटिवेशनल टॉक्स बहुत देती हूँ, मुझे मेरा टाइम अच्छे से गुजर जाता है। फिर जिम करती हूँ, आई मेक श्योर जो थोड़ा सा स्ट्रेस है वो जिम में भी निकल जाता है। सो और स्ट्रेस तो रहेगा, आई थिंक जब तक आप हैं, आप फुल लाइफ स्ट्रेस में हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप हाउस वाइफ भी क्यों ना हो, स्ट्रेस हमेशा ही रहता है। बट उसे कैसे आप ठीक कर सकते हैं, यू विल हैव टू फाइंड वेज। चाहे आप कुछ मूवी देखना चाहते हो, कॉमेडी शो देखना चाहते हो, जिम करना चाहते हो, अच्छा खाना खाना चाहते हो, क्योंकि खाना भी मैटर करता है बहुत। अच्छा खाना खाते हैं तो अच्छा बॉडी फ्रेश रहता है। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर्स, तो मैंने सीख लिया है। एंड आई have to learn a lot more. I'll have to learn a lot more to be really calm and relaxed. वो चाहिए। I think one thing you can never retire from, and you will never retire from, is being the ambassador of the game. थैंक People, for not just this generation, यू जी। but hundreds of years, नहीं, your name is written on the wall. It's in the history of India. People will continue to take inspiration from you, and that is something that you earned नहीं, more than anything else. I think today, our nation, whenever they look at you, whenever they think of you, there is so much love. I think you all this accomplished that you had, right? If you put it into perspective, it's not for you. Maybe God had a larger plan for right, you. This is a benchmark that you set for so many future generations to follow, and that nobody can retire you from. Before right. we end this episode, I wanted to have a quick rapid fire Yes, to end it on a high note. yes, And I call it a rapid fire round, but in your case, we'll call it beyond the courts. beyond the courts. So I'll ask you questions. Yes, You just answer me instantly, whatever comes to your mind, right? right. If not badminton, then what? डॉक्टर Doctor. Shah Rukh Khan or Ranbir Kapoor, and why? शाहरुख खान। मतलब बचपन से उनकी फैन रही हूँ। आई मीन हरियाणा से जैसे 5 6 साल के बच्चे डीडीएलजे देख रहे हैं, उनके गाने सुन रहे हैं, तो एक उनका फैन मोमेंट, हमेशा से उनकी फैन रही हूँ। और उनसे काफी बार मिली भी हूँ। इज वेरी चार्मिंग, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। जैसे वो आपको महसूस करवाते हैं एक चैंपियन की तरह। आई मीन ही इज अ वेरी नाइस पर्सन दैट वे। और हाँ, रणबीर कपूर भी अच्छे हैं, बट आई थिंक शाहरुख खान इज शाहरुख खान, या। One song that instantly fits your mood. फिट्स माय मूड। नहीं, अरिजीत सिंह इज अ वंडरफुल सिंगर, उनके कोई भी गाना आई थिंक लगा दीजिए,
सब अच्छे लगते हैं मुझे. Arijit Singh is my favorite. And during your sporting days, was there any song that lifted your mood and चक दे songs kept were on? very, yes. Anyway, 2006 से ही है ना उनके, तो 2006 में ही मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, और उनके सॉन्ग्स भी चक दे मूवी के सॉन्ग्स जब भी लगाते थे तो वो एक अलग तरह का जोश, या वैसे जोश काफी था मेरे अंदर, और थोड़ा बहुत जो भी हेल्प करा उस सॉन्ग ने, आई मीन कुछ करिए, दैट सॉन्ग वाज वेरी वेरी गुड. या If God were to give you one superpower, what would you ask? सुपर पावर टू नो अबाउट द गेम. आई विश कि क्या होने वाला है. वो सबसे स्ट्रेसफुल है, जीतेंगे या हारेंगे, जीतेंगे या हारेंगे. Isn't that the fun part of it though? यस, बट मतलब जस्ट टू बी लाइक, हाँ आ ही जाएगा, बट यस दैट इज व्हाट इज द प्रेशर, आई हैज टू एंजॉय दैट. या बट सुपर पावर है तो कुछ ऐसे मांगो ना जैसा पता हो. आई मीन यस. And my final question to you is, if there is a Steffi Saina यस. from a street in Hisar, 9-year-old kid watching you today who wants to be the future world number one, Yeah. what would your message be for her? जस्ट वर्क हार्ड. आई मीन डोंट वरी अबाउट कि टैलेंट है कि नहीं, तुम में है कि नहीं, वो कैलिबर सब आ जाएगा इफ यू वर्क हार्ड. एंड नो शॉर्टकट. आई मीन शॉर्टकट से कुछ होने वाला नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. कोई भी चीज़ एक साल में नहीं आएगी. यू विल हैव टू वर्क फॉर इयर्स इफ यू आर इन स्पोर्ट. अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी आपको काफ़ी सालों में ही अचीवमेंट मिलती है. तो जस्ट मेक श्योर यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर डिसिप्लिन. एज मच एज पॉसिबल लिसन टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, क्योंकि जो वो एडवाइस करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से करते हैं, और उनकी ऑब्वियसली एडवाइस में गुस्सा भी आता है हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है वो सच भी बोल रहे हैं. तो उनकी एडवाइसेस सुनो और आप काफ़ी कुछ लर्न करेंगे उससे. एंड जो आपका दिल कहता है वो करो, बट बिलीव इन योर सेल्फ कि यू आर द बेस्ट. यस. Saina, it has been my pleasure to host you today. थैंक यू सर. I feel that woman like you, जी. sports person like you, who's done so much for the country, yet such grounded personality, who still wants to do selflessly, give it to everybody who wants to learn from your journey. And that's why I said what I said. I'm going to repeat it as we conclude, that no matter what, in 100 years from now, Saina Nehwal will always be our champion. थैंक यू. There'll be hundreds and hundreds of Indians who will take inspiration from you. There'll be millions who've inspired through your journey. I'm a fan in a personal capacity. But most importantly, you created something in badminton that India had never seen before. And that is something that the entire generation would always take pride for. So thank you so much Thank you, sir. from bottom of my heart. Thank you. Thank you for doing everything that you've done for our country. And thank you for making us proud every single time, not only when you won, but also when you lost. India was and India continues to be with you. Thank you, sir. Thank Thank you you. so much. Thank you. So, ladies and gentlemen, I hope you take great inspiration from Sania Nehwal ji as much as I did. This is something that comes straight from our heart, such a selfless conversation we've had, and I hope it's going to inspire future sports persons. No matter which sports you play, not just badminton, I hope we can learn a lot from her life and her journey. Continue to subscribe to us. Please make sure you share this episode with anybody who would find value in it. And stay tuned for more such meaningful conversations. Until then, take care. Thank you very much.